Imagine sitting in a luxury apartment in Berlin, Germany, 6,000 kilometers away from the reality of India, and telling 1.4 billion people that they are uneducated or manipulated just for enjoying a Bollywood movie. Yes, I am talking about Dhruv Rathi. He calls Dhurandhar a propaganda. इस संडे दोस्तों आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप अपने 4 घंटे बर्बाद कर सकते हो इस प्रोपेगेंडा फिल्म को देखने में। लेकिन हिपोक्रेसी देखिए, this is the same person who gave a frictional narration bavandar of the Pulwama attack, claiming that the government planned it for 2019 elections. जब आप रियल ट्रेजेडी पर फेक स्टोरी सुनाते हो तो वो क्रिएटिव लिबर्टी है, लेकिन जब एक डायरेक्टर फिल्म बनाता है तो वो प्रोपेगेंडा बन जाता है। क्या कर रहे हो ध्रुव भाई? जस्ट चूज अ साइड। जब धुरंधर 1 रिलीज हुई थी तब तुमने ये ट्वीट किया था that it takes 1 YouTube video to destroy a 300 crore propaganda film. Like bro, do you live under a rock or something? Dhurandhar was a massive blockbuster, crossing over 1300 crores worldwide. अब Dhurandhar 2 भी आ गई, and just like the first part, it has broken all records, generating more than 300 crores in the first 3 days. ध्रुव पूछता है, गवर्नमेंट ओपनली एडमिट क्यों नहीं करता है that they have sent spies to Pakistan? Buddy, it's raw, not Zomato. Intelligence agencies don't send tracking links for covert operations. Like if you are openly admitting that you have sent one of your agents to another country, this is an act of war, both legally and diplomatically. Do you really care about your national security, or are you just looking for another script for your next anti-India video? And ये वही लोग होता है जिनका दिमाग घुटने में होता है. They just talk senseless shit. अब ये ध्रुव का टारगेट ऑडियंस यही लोग होता है who actually hate the government and are waiting for a confirmation, एक affirmation. हाँ, ये बंदा जो बोल रहा है और मैं जो सोच रहा हूँ वो बिल्कुल सही है. Dhruv gives them exactly that without logic and zero context. पर आज we are going to tear down this senseless manipulation. मतलब जिन लोगों का दिमाग actually घुटने में रहता है, and talk about the real enemies, the ones inside our borders. And let's see who actually is setting the propaganda. अब बहुत लोगों का कहना यह है कि ये बीजेपी फंडेड मूवी है, ये एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है या whatever it is. पर ये जो डायरेक्टर का आइडियल मैसेज क्या था, उसका आइडियोलॉजी क्या था, इट वॉज एक्चुअली अबाउट नेशनलिज्म. एंड आई थिंक दैट वॉज वन ऑफ द फेवरेट डायलॉग्स इन माई ओन मूवी टू, जहाँ एक लाइन आता है, इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया के अंदर ही आता है. हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है. पाकिस्तान comes in number 2, and that's very true. हमने ये भी देखा कि दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में अल्फला यूनिवर्सिटी में we saw many students were recruited, which means the criminals are hiding in our own country. And recently, even during this Iran war, few Americans, Ukrainians were caught, जिसमें से एक बंदा एक डेंटिस्ट भी था, which basically proves enemies are lying within our borders, and ये एक reality है. And this movie also shows an important example of Atiq Ahmed, who was named as Atif Ahmed in this movie. और ये पिक्चर दिखाता है that this gangster was in touch with ISI and Lashkar-e-Taiba dealing weapons in UP. Dhruv calls this propaganda, but let's look at facts. Retired IPS officer Lalji Shukla, जिन्होंने अतीक अहमद को 3 बार अरेस्ट किया था, 1996, 2001 and 2002 में, and he was asked about the ISI connection shown in this movie. और उन्होंने कहा, while some aspects of the film may be creative fiction, but it is an absolute fact that Atiq and Ashraf had access to foreign-made arms and were connected to the underworld. अब आप किसकी बात सुनोगे? जो ऑफिसर ग्राउंड पर थे या जो बंदा बर्लिन में बैठ के बौख रहा है, saying that this is a propaganda film. फिल्म दिखाती है कि कैसे दुश्मन देश सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं, बल्कि हमारे ही घर के अंदर हमारे ही लोगों को बीच secession, which is trying to create separation within the country. पर रियलिटी क्या है? आज हम देख रहे हैं कि कैसे कनाडा और यूरोप में बैठ के कुछ सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स खालिस्तान को डिमांड करता है. लेकिन दुख तब होता है जब हमारे अपने देश की कुछ लोग जो पंजाब में रहते हैं इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है. और हम पीसफुल तरीके से अपनी बात करेंगे और पीसफुल तरीके से हम एडवोकेट करेंगे कि हमारा एक अलग से मुल्क हो और हम आज़ादी चाहते हैं पीसफुल तरीके से, और देश से अलग एक नया स्पेस बनाना चाहता है. अगर हम इस इशू पर बात कर रहे हैं तो हम कम्युनल हो गए, एंड इफ वी टेल कि खालिस्तान की मांग करने वाले देश के दुश्मन है तो हम प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं. क्रिटिक्स कह रहे हैं कि धुरंधर 2 इसलिए प्रोपेगेंडा है क्योंकि ये एक स्पेसिफिक नैरेटिव सेट कर रही है. लेकिन पिछले 20 साल से क्या हो रहा था? लेट्स टॉक अबाउट अ 2007 ब्लॉकबस्टर चक दे इंडिया. सबने देखी और सबने 70 मिनट्स पर तालियां बजाई. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म का असली हीरो कौन था?
He was Mr. Ranjan Negi. He was a Kashmiri Pandit playing as a goalkeeper. 1982 के एशियन गेम्स में उन पर पाकिस्तान के खिलाफ मैच फिक्सिंग और गद्दारी का फेक ब्लेम्स लगा था. He went through hell. लेकिन जब बॉलीवुड ने उनकी बायोपिक बनाई तो उनका नाम बदल दिया, उनका धर्म बदल दिया और उन्होंने बनाया कबीर खान. एक कश्मीरी पंडित की असली स्ट्रगल दिखाना कम्युनल हो जाता है, लेकिन उन्होंने मुस्लिम प्रोटोगनिस्ट बनाकर दिखाना प्रोग्रेसिव और सेक्युलर समझा. ये फिल्म यूपीए गवर्नमेंट के टेन्योर में आई थी. क्या तब किसी ने कहा ये प्रोपेगेंडा है? क्या तब किसी ने कहा कि आप एक असली हिंदू एथलीट की आइडेंटिटी इरेज कर रहे हैं सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने के लिए? नहीं, तब सब साइलेंट थे क्योंकि तब नैरेटिव उनके हाथ में था. आज जब धुरंधर 2 रियल टेरर इवेंट्स पर बात करती है, आईएसआई का नाम लेती है और इंडिया की सिक्योरिटी को सेलिब्रेट करती है, तो वो प्रोपेगेंडा बन गई सिर्फ इसलिए क्योंकि इस बार हीरो कबीर खान नहीं, जसकिरत है. This selective outrage is exactly what we need to identify. We need to understand what Atal Bihari Vajpayee, one of our greatest leaders, ever said in the parliament. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए. हमारे आइडियोलॉजी का सबसे बड़ा पिलर होना चाहिए नेशन फर्स्ट. अगर आप फिल्म को सिर्फ इसलिए हेट कर रहे हो क्योंकि आपको करंट गवर्नमेंट पसंद नहीं है, तो आप मूवी गोअर नहीं, आप एक बायस्ड पपट है, जस्ट लाइक अ जर्मन शेपर्ड. एक फिल्म जब एक्सप्लिसिटली बोलती है कि इट इज अ एक्ट ऑफ फिक्शन मेंट फॉर एंटरटेनमेंट, तो उसे एंटरटेनमेंट की तरह देखो. सिनेमा इज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन. इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है KGF चैप्टर 2. इस फिल्म में प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन का कैरेक्टर याद है. पूरी दुनिया ने देखा कि वो कैरेक्टर इंदिरा गांधी से इंस्पायर्ड था. उनका लुक, उनका बात करने का स्टाइल और यहां तक कि फिल्म में दिखाया गया इमरजेंसी का सिनारियो सब रियल हिस्ट्री से लिया गया था. लेकिन क्या तब किसी ने कहा कि KGF एक प्रोपेगेंडा फिल्म है? नहीं, तब सबने उसे एक मास एंटरटेनर की तरह एंजॉय किया. तो फिर आज धुरंधर पर इतना सेलेक्टिव आउटरीच क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि इस बार नैरेटिव आपकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं करता. सो डोंट लेट पीपल सिटिंग 6000 किलोमीटर्स अवे इन बर्लिन मैनिपुलेट यू. उनके लिए ये सिर्फ व्यूज और डिजिटल स्क्रिप्ट है, लेकिन हमारे लिए ये हमारा देश है, हमारी सिक्योरिटी है और हमारी आइडेंटिटी है. डिसाइड आपको करना है. डू यू स्टैंड विद द नेशन और विद द प्रोपेगेंडा अगेंस्ट द नेशन? पुट द कंट्री अबव द पार्टी ऑलवेज.